اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز ناظرین حضرات، آپ تمام کا نواز اردو یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ نواز اردو یوٹیوب چینل کا آج کا یہ ویڈیو کرناٹکا کے کلیکا طریقے کے اکتسابی صفحات کو حل کیا جائے گا۔ تو اس ویڈیو میں ہم 7ویں جماعت کے سماجی سائنس کے اکتسابی صفحات کو حل کریں گے۔ 7ویں جماعت کا 8واں سبق، 7ویں جماعت کا 8واں سبق کون سا ہے؟ جنگ کے اسباب۔ کیا؟ جنگ کے اسباب، اس کے بارے میں دیکھیں گے جنگ کے اسباب کیا ہے۔ تو ہمارا اقتصادی ماحصل کیا ہے؟ جنگ کے وجوہات اور اس کے نتائج کو سمجھیں گے۔ تو یہاں پر تھوڑا اقتباس دیا گیا ہے۔ تاریخی مطالعہ کرتے وقت کیا ہمیں بادشاہوں کے انتظامی، سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کے علاوہ اپنی حکومت کو توسیع کرنے کے لیے زمینی علاقوں پر قبضہ کرتے ہوئے اپنی دولت اور اقتدار کو مضبوط کرنے میں پیش یعنی آگے تھے۔ تو ایسے دور میں یہاں پر بادشاہوں نے کس طرح سے اپنے علاقوں کی توسیع کی، اس کے بارے میں بحث کرنا ہے۔ یہاں پر دو بچے ارون اور ہیمنت کی آپس میں بحث ہے، تو ان بحث کو پڑھیے گا تو یہ تو ایزی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے یہاں پر سیدھے عہد وسطیٰ کے دور میں علاؤالدین خلجی کے حملے، پہلی پانی پت کی جنگ اور تاڑی کوٹ کی جنگ کے بارے میں۔ تو دیکھو علاؤالدین خلجی کے حملوں کے بارے میں یہاں پر اہم نکات یہ ہیں۔ علاؤالدین خلجی کیا ہے؟ اس نے جنوبی ہندوستان پر حملے کیے، اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ منگول کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلسل جنگوں میں فتح حاصل ہونے کی وجہ سے علاؤالدین خلجی کے پاس مضبوط فوج تھی اس کے پاس، اور منگول کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شمالی ہندوستان کے تمام علاقوں پر جیت حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنے فوج کے سپہ سالار ملک کافور کی قیادت میں جنوبی ہندوستان کی دولت کو لوٹنے کے لیے روانہ کرتا ہے۔ تو جنوبی ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے ملک کافور کو اس نے سپہ سالار بنا کر بھیجتا ہے۔ تو اس کے سپہ سالاری میں جو جنوبی ہندوستان میں اس کا حملہ ہوا، وہ ملک کافور کا حملہ 1308 سے 1311 کے درمیان ہوا، اس وقفے میں ہوا۔ تو اس دور میں اس نے کن کن علاقوں پر حملہ کیا؟ دیکھو، سب سے پہلے اس نے دیوگری کے راجا رام چندر دیوا پر حملہ کیا، اس کے علاقے پر پہلا حملہ۔ اس کے بعد دوسرا حملہ اس کا وارنگل کے کاکتیہ کے راجا پرتاپ رودرا پر ہوا، دوسرا حملہ۔ اور تیسرا حملہ دوار سمودرا کے ہوئسڑا خاندان کے راجا ویر بلاڑ سوم پر ہوا، تیسرا حملہ۔ اور چوتھا حملہ مدورائی کے پانڈیا راجا سندر پانڈیا پر ہوا۔ ان چاروں حکمرانوں کو شکست دے کر بے شمار دولت اس نے کیا ہے؟ دہلی کا رخ کیا۔ یہ علاؤالدین خلجی کے حملے کے مطابق، یعنی علاؤالدین خلجی کا سپہ سالار ملک کافور 1308 سے 1311 کے درمیان 4 حکمرانوں پر، جنوبی ہندوستان کے 4 خاندانوں پر حملہ کر کے یہاں سے بے شمار دولت لوٹ کر شمالی ہندوستان کو چلا گیا۔ یہ علاؤالدین خلجی کے مطابق۔ اب ہم دیکھیں گے پانی پت کی جنگ کے بارے میں۔ پانی پت کی پہلی پانی پت کی جنگ وسط ایشیا کے سمرقند سے تعلق رکھنے والا بابر کیا ہے؟ وسط ایشیا کا سمرقند سے تعلق رکھتا ہے، جو افغانستان کے کابل میں تھا۔ تو افغانستان کے کابل میں توپوں سے ملبوس فوج تیار کرتا ہے، توپوں سے ملبوس فوج تیار کر کے 1526 میں پانی پت نامی مقام پر دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یعنی لودھی خاندان کا آخری بادشاہ ابراہیم لودھی اس پر حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے، کہاں؟ پانی پت کے مقام پر 1526 میں۔ تو ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ کی فوج ہوتی ہے، اس کے باوجود بابر کے پاس صرف کیا ہے؟ 12,000 فوج ہوتی ہے۔ تو بابر کیا کرتا ہے؟ اس جنگی مہارت، اس کو شکست دینے کے لیے، ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ کی فوج کو شکست دینے کے لیے کیا ہے؟ وہ جنگی مہارت اور چالاکی کے ذریعے جنگ میں جیت حاصل کرتا ہے، فتح حاصل کرتا ہے، جنگی مہارت کی وجہ سے۔ ہمارے مطالعے میں آیا ہے کہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی، تو اس نے ہاتھیوں کو آگے کیا تھا۔
तो बाबर ने चालाकी इस तरह से इस्तेमाल की कि अपने तलवारों को घस के एकदम आईने के मानिंद बनाया, और दोपहर की धूप में, दोपहर के वक्त क्या है, उसका साया हाथियों के आंखों पर छोड़ा, और उसी तरह उसने हाथियों को निशाना बनाकर हाथियों के आंख पर तीर दागे। इस तरह से हाथी बिलबिला कर, घबरा कर क्या है, वापस इब्राहिम लोदी के फौज में ही धूम मचाया और पीछे हट गए। तो इस तरह हाथियों के पैरों में आकर इब्राहिम लोदी की ज्यादातर फौज वहीं पर खत्म हो गई। इस तरह से चालाकी करके बाबर ने जंग जीत ली। इस जंग के नतीजे में बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल की हुकूमत की बुनियाद डाली, मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। कौन? बाबर। कौन सी? पानीपत की पहली जंग। अब हम आते हैं ताड़ीकोटी जंग। इस ताड़ीकोटी जंग के दीगर नाम भी हैं, रक्कस तंगड़ी की जंग भी बोलती हैं, बन्नी हट्टी की जंग भी बोलते हैं, क्योंकि बन्नी हट्टी इलाके में भी इसके करीब में रक्कस तंगड़ी इलाका है, उसके करीब में बड़ा शहर ताड़ीकोट है, इसलिए इसको ताड़ीकोट जंग भी बोलती हैं, रक्कस तंगड़ी जंग भी बोलती हैं, बन्नी हट्टी जंग भी कहा जाता है। तो देखो ये जंग क्या है, विजयनगर के सल्तनत के हुकूमत का इक़्तिदार दामाद रामराय के हाथ में था। हाँ, और उसने क्या है, बीजापुर के आदिल शाह की सुल्तान अली आदिल शाह अव्वल से मिलकर निजाम शाही सदर मुकाम अहमदनगर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यानी राम राया अहमदनगर पर हमला करने की वजह से ये जंग थी। इसके बदले में अहमदनगर के सुल्तान हसन निजाम शाह ने चारों शाही सल्तनतों का इत्तेहाद तैयार करके गोलकुंडा के इब्राहिम शाह, चार शाही कौन थे? गोलकुंडा के इब्राहिम शाह, बीदर के अली बली शाह, बीजापुर के आदिल शाह अव्वल के साथ मिलकर उसने क्या है, इनका इत्तेहाद तैयार करके कृष्णा नदी के जुनूब की जानिब 12 किलोमीटर मौजूदा बन्नी हट्टी नामी मुकाम पर 23 जनवरी 1565 को हुई जंग में विजयनगर फौज को पूरी तरह से शिकस्त देता है। कौन? अहमदनगर के हुसैन निजाम। क्यों? क्योंकि उसने विजयनगर हुकूमत के मुक्तदार राम राया, उसने क्या किया था, अहमदनगर पर हमला किया था, उस वजह से उसने इस पर हमला करके विजयनगर सल्तनत को शिकस्त कर देता है। और तकरीबन 2 सदियों तक जनूबी हिंदुस्तान के कई इलाकों पर हुकूमत करने वाली विजयनगर सल्तनत का खात्मे का आगाज इस जंग से शुरू होता है, ताड़ीकोटी जंग से। इस तरह से ताड़ीकोटी जंग। तो अब हमें क्या है, इन तीनों जंगों के मुताल्लिक देखकर इनके मुताल्लिक इक्तिसाबी सफ़ात को हल करना है। तो चलो देखेंगे। तो पहले यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर 2 तस्वीर दिए गए हैं। देखो तस्वीर, इन तस्वीर को देखकर इन तस्वीर में क्या हो रहा है लिखना है। तो यहाँ पर इन तस्वीर को देखने पर हमें इनके जवाब इस तरह से आते हैं। क्या है इनके जवाब? देखिएगा, पहली तस्वीर में क्या है, पहली तस्वीर में हम ये देख सकते हैं कि जंग का माहौल छाया हुआ है। यहाँ घोड़ सवार फौज, हाथियों की फौज और पैदल फौज मौजूद है। यहाँ फौजी एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। कहाँ? इस पहले तस्वीर में। अब हम दूसरी तस्वीर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तस्वीर में देखो, दूसरी तस्वीर में जंग के बाद का मंजर यहाँ देख सकते हैं कि ज्यादातर फौजी मर चुके हैं। जिस जगह जंग हुई थी वो जगह बर्बाद हो चुकी है। कहाँ? ये दूसरी तस्वीर में। इस तरह से क्या है, ये 2 तस्वीरें मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़े हैं तो दूसरी इक्तिसाबी सरगर्मी देखिए। यहाँ पर हमें क्या करना है। हाँ, बच्चों किताब में मौजूदा नक्शे की मदद से हिंदुस्तान के नक्शे में अलाउद्दीन खिलजी के जनूबी हिंदुस्तान पर किए हुए हमलों के रास्ते और मुकामात की निशानदेही करना है। किसमें? इस हिंदुस्तान के नक्शे में। तो यहाँ पर देखो, इस नक्शे में, यहाँ पर किताबी नक्शा है, यहाँ पर उस नक्शे का निशानदेही किया हुआ नक्शा है। देखो, अलाउद्दीन खिलजी के जनूबी हिंदुस्तान पर हमला। तो सिपह सालार, फौजी सिपह सालार कौन था?
मलिक काफुर था। तो हमला 1113, देखो यहाँ पर है, हाँ, हमला 1113 से 1308 से 1311 तक हुआ। तो दहली उनका दारुल हुकूमत था, दहली उनका दारुल हुकूमत था। तो यहाँ से उन्होंने सीधा पहला हमला देवगिरी पर किया। वहाँ का देवगिरी का हुक्मरान कौन था? देवगिरी में यादव खानदान हुकूमत कर रहा था, और वहाँ का राजा रामचंद्र देव था। तो उसके बाद दूसरा हमला सीधा इस तरफ वारंगल की तरफ होता है। वारंगल, वारंगल क्या है? वारंगल के हुक्मरान काकत्या खानदान कर रहे थे। तो काकत्या खानदान का राजा प्रताप रुद्रा उस वक्त हुक्मरान था। उस दौर में मलिक काफूर ने यहाँ पर वारंगल पर हमला किया था। उसके बाद सीधा कर्नाटक के द्वारा समुद्रा पर आता है। द्वारा समुद्रा पर क्या है? होयसड़ा खानदान हुकूमत कर रहा था। तो वहाँ का राजा वीर बिल्लाड़ सुवम था। उस वक्त मलिक काफूर हमला किया था। और इसका मलिक काफूर का आखिरी हमला जुनूब में मदुराई पर होता है। मदुराई पर क्या है? मदुराई के इलाके में उस वक्त पांड्या खानदान हुकूमत कर रहे थे। तो पांड्या खानदान का राजा उस वक्त सुंदर पांड्या था। तो इस तरह से ये हम इसमें हिंदुस्तान के नक्शे में इसकी निशानदही कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखें। तो चलो अगली तीसरी सरगर्मी है बाबर की पानीपत की जंग में अपनी फौज से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त देता है, इस पर बहस करें जी। ये तो वहाँ पर जो है वही पर हम यहाँ पर दोबारा दोहरा कर लिख सकते हैं। क्या उसने इस जंग में बाबर के पास, इब्राहिम लोदी के पास क्या है, 1 लाख से ज़्यादा फौज थी। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा फौज थी, बाबर के पास 22,000 फौज थी। तो उसने क्या है, जंगी महारत और चालाकी के जरिए इस जंग को जीत लिया, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़े चौथी सरगर्मी, विजयनगर सल्तनत का जवाल का सबब, ताड़ीकोट की जंग पर नोट लिखना है। तो ताड़ीकोट की जंग जो हुई, तो डिटेल उसी को यहाँ पर दोहरा कर लिख सकते हैं, जो मैंने वहाँ पर आपको बताया था, यही दोहरा कर दोबारा लिख सकते हैं, वही नोट है यहाँ पर। उसके बाद पांचवी सरगर्मी है जंग होने की वजूहात क्या है, जंग क्यों होती है और उसको किस तरह रोका जा सकता है। तो देखो, जंग की वजूहात दर्ज झेल है। क्या? जमीन सतह को, जमीन, पहला क्या है, जमीन है, सल्तनत को वसी करने के लिए जमीन चाहिए। तो इसलिए क्या है, जमीन को हासिल करने के लिए, सल्तनत को वसी करने के लिए क्या है, जंग होती है। दूसरा क्या है, जेवरात मतलब दौलत को पाने के लिए भी जंग होती है। तीसरा और एक जन आता है, यानी औरतों को हासिल करने के लिए, तो उसका नहीं लिखा, लेकिन ये तो इन वजूहात की बिना पर जंग होती है। जंग को हम कैसे रोक सकते हैं? देखो, जंग को रोकने के लिए हम हुक्मरानों को समझाना चाहिए कि जंग की वजह से बहुत से लोगों की जान जाती है। जंग में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर बम की गैस की वजह से वहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है और इंसान कमज़ोर और माजूर पैदा होते हैं और दीगर जानी व माली नुकसान होते हैं। इसलिए हमें जंग नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम क्या है, हुक्मरानों को समझाकर जंग से बाज आने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह से ये रहा 7वीं जमात के कलिकाची तरीके के इक्तिसाबी सफ़ात इस हिस्से के। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।